Hello children, how are you? In the last video, we studied difference between glucose powder and glucose drip. Today, we are going to study about digestive juices. Here, one poem is here, Martin's Window. Martin who was a soldier, once he sought in his valley and got seriously hurt. The poem is like this. Here's an old story, it seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin's was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin. But the hole was still there. You could peep right in. What is the meaning of peep? Peep means झांकना, देखना. Oh, what a chance for doctor to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. Here you will read a story of Martin. As I told you, Martin was a soldier. Once he was shot in his valley and got seriously hurt. In the poem, you read about a soldier called Martin. In 1822, he was 18 years old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. Dr. Beaumont cleaned the wound and put a dressing. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of skin, like the washer in a football. Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. The Dr. Beaumont felt he had found a treasure. Can you guess how much time he spent on doing different experiments on his stomach? 9 years. 9 years Dr. Beaumont does many experiments in his stomach. During this time, Martin grew up and got married. Now, जब मार्टिन को चोट लगी तो डॉक्टर पीमाउंट को बुलाया गया और उन्होंने उसके जो घाव था उस पर ड्रेसिंग करी. ड्रेसिंग मीन उसको क्लीन किया और उन्होंने उसमें 1.5 ईयर्स तक उसमें एक्सपेरिमेंट उसको ट्रीट किया. जब ट्रीट करने के बाद उसने देखा कि उसके सारे घाव तो हील अप हो गए हैं, लेकिन एक स्किन पे एक क्या है, होल बचा हुआ है और वो एक लूज स्किन से उसको ढका हुआ है, लेकिन वो उसके अंदर सब कुछ देख सकता था. इवन वो क्या खा रहा है, कैसा, उसके अंदर से खाना भी उसने निकाल के चेक करा था. नाउ व्हाट ही डिड? एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड. उसमें साइंटिस्ट को भी ये पता नहीं था कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है. उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पता नहीं था. हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस जो हमारे स्टमक में होते हैं हेल्प्स? डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन? वो कहता है कि जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होते हैं, क्या वो सिर्फ खाने को गीला और सॉफ्ट करते हैं या फिर उसमें कुछ डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं? तो फिर उसके बाद डॉक्टर बीमाउंट थे, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट करे. नाउ सी व्हाट ही डिड. डॉक्टर बीमाउंट took some liquid juices out of the stomach
He wanted to see what would happen to the food items kept in a glass filled with it. He took out some liquid from Martin's stomach and kept this liquid in a glass filled with it. Would it get digested on its own? क्या खाना खुद से डाइजेस्ट हो जाता है या फिर ये लिक्विड उसमें कुछ हेल्प करता है, ये जानने के लिए उसने ये सब करा. With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. At 8:30 a.m., he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 millimeter of the juice. तो उसने क्या करे, जब उसने डाइजेस्टिव जूस को उसमें लिया था, उसमें मॉर्निंग में 8:30 बजे उन्होंने उसमें कुछ डाइजेस्टिव वो डाले, छोटे छोटे बॉइल्ड फिश के बॉयल वो कर डाले, उसमें बॉयल की हुई फिश को 10 मिलीलीटर ऑफ जूस में डाले. ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक. और उसने देखा कि हमारे स्टमक के अंदर का जो टेम्परेचर है सेम उसी टेम्परेचर में उसने उस ग्लास को रख दिया, अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे. व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, जब उसने 2 बजे उसको चेक करा, ही फाउंड दैट द पीस ऑफ फिश हैड डिजॉल्व. उसने देखा कि जो फिश के पीस थे वो क्या हो गए हैं, उस जो लिक्विड था उसमें डिजॉल्व हो गए. डॉक्टर बीमाउंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स. उसने इसी तरह कई फूड आइटम्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया. ही गेव मार्टिन्स द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन्स स्टमक. ही रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल. उसने सेम टाइम पे मार्टिन को भी वही खाना देता था और ग्लास से भी वही खाना डालता था और उसके बाद चेक करता था कि कंपेयर करता था कि कौन सा खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, और उसने उसको रिकॉर्ड किया किसमें, एक टेबल में जो कि नीचे दी हुई है. देखते हैं क्या रिकॉर्ड करा. Here is a part of his observation table. Here he take unboiled milk and when he put in the stomach and in the glass, both, whereas in the glass unboiled milk take 2 hours 15 minutes in the stomach to digest and in the glass 4 hours 45 minutes. Similarly, boiled milk, boiled egg, half boiled. He also saw that all the food items took less time inside the Martin's stomach. You can see here in the Martin's stomach, all the food items take less time to digest, and in the glass it took more time in compared to stomach. Inside the stomach it took less time, whereas outside the stomach it took almost double time. So that magical is there. Inside the stomach, the same food along with the same digestive juice will take less time. This observation, Dr. Beaumont found that our stomach take less time to digest anything, and in the outside it took almost double time. सो व्हाट डज अवर स्टमक डू. तो वो जानना चाहता था कि हमारे स्टमक के अंदर ऐसा क्या होता है जो वहाँ पे कम समय में खाना वो बनता है और तो वो वहाँ पे ज़्यादा समय में होता है. तो डॉक्टर बीमाउंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन. ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड. You can notice this in this table. Our stomach churns the food to digest it. So what you mean by churns? Do you understand about churns? Churns means to mix something very violently or very vigorously, just like you have seen your mother churning milk to take out cream out of it. आपने देखा होगा आपकी मम्मी दूध की मलाई जो होती है उससे क्रीम बाहर निकालती है. Similarly, our stomach also churns the food so that it get
properly mix with the digestive juice. वैसे ही हमारा पेट भी जो होता है वो खाने को ऐसे ही चर्न्स करता है जिससे कि वो डाइजेस्टिव जूस में क्या हो सके, मिक्स हो सके. एंड फूड विल गेट ईजिली डाइजेस्टेड, और जिससे खाना क्या हो जाएगा, ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा. डॉक्टर बीमाउंट the doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. उसने ये भी देखा कि जब मार्टिन उदास होता है तो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है. He also found that the juice in our stomach is acidic. और जो हमारे डाइजेस्टिव जूस जो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं वो उसकी वो प्रॉपर्टीज कैसी होती है, वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं. Have you heard of anyone taking about acidity? क्या आपने किसी को सुना है कि एसिडिटी हो गई? Now you can understand by this. Have you ever listened in your home that your mother, father or your family member someone says एसिडिटी हो गई है, पेट में जलन हो जाना, ठीक है. उसमें क्या होता है, दिस टाइम द डाइजेस्टिव जूस इन आवर स्टमक, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, इसमें जो होते हैं डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उसमें क्या होता है, इन आवर स्टमक इज़ हाईली रेज, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड उनसे निकलने लग जाता है हाईली अमाउंट में, और इट क्रिएट्स एसिडिटी एंड वी फील बर्निंग काइंड ऑफ सेंसेशन. उसमें हमको कैसा फील होता है, एसिडिटी होती है, और हमारे उसमें कैसा होता है कि जैसे अंदर से कुछ जल रहा है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एसिडिटी. नाउ जर्नी ऑफ फूड. नाउ जर्नी ऑफ फूड, हाउ, जो हमारा खाना है वो कैसे हमारे पूरे शरीर में उसकी जर्नी होती है. फूड एंटर्स, हम सबसे पहले खाना क्या करते हैं, एंटर्स इन आवर माउथ, फूड को कहाँ डालते हैं, अपने मुंह पे. वी टेस्ट एंड च्यू इट. फूड एंटर्स द स्टमक थ्रू अ फूड पाइप. ये फूड पाइप है, इसके थ्रू कहाँ चले गया, हमारे स्टमक में चले गया. फूड गेट मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूस. हियर फूड गेट मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूस. स्टमक चर्न्स एंड फूड इज डाइजेस्टेड. यहाँ पे स्टमक क्या करता है, उसको चर्न्स करता है, बारीक बारीक पीस देता है और उसको डाइजेस्ट करता है. नाउ जो डाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. देन डाइजेस्टेड फूड गिव्स अस एनर्जी टू द बॉडी. और जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. एंड देन डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें जाता है. एंड फाइनली इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट. और फाइनली वेस्ट के रूप में जो होता है वो हर एक शरीर से बाहर निकल जाता है. नाउ ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होके कैसे उसको कहाँ कहाँ जाना, कौन कौन जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इसमें यूज़ होते हैं और कैसे वो बाहर जाता है. नाउ फ्रॉम ये तो था आपने मार्टिन के स्टमक से पढ़ा था. अब है गुड फूड एंड गुड हेल्थ. क्या होता है, what will happen if we eat too less or too much food. Here is a story, you can see. She is Rasmi and she is 5 years old. She is Rasmi, she is 5 years old. She looks about 3 years old, but she looks about 3 years old. She has very thin arms and legs and a pot belly. What is pot belly? Pot belly is just pot belly it is a disease. In this stomach, our stomach like a balloon. She often fall sick. जिसको पॉट ओली होती है वो हमें अक्सर क्या दिखते हैं, बीमार दिखते हैं. ये देखिए, ये है फैट वैली. फैट वैली इसमें देखो इसका स्टमक जो है वो काफ़ी फूला हुआ है, बैलून की तरह फूल जाता है, और हाथ और पाँव क्या हो जाते हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं. वो क्या कहलाता है, फैट बेली कहलाता है. सी ऑलवेज फील टायर्ड. वो बहुत बीमार सी लगती थी, हमेशा कैसी लगती थी, थकी थकी सी. एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली. और रेगुलरली स्कूल भी नहीं जाती थी. सी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले. और उसके यहाँ खेलने तक की भी ताकत नहीं थी. बिकॉज रश्मि इज़ वेरी पोर. वो बहुत गरीब थी. सी इज़ नॉट एबल टू गेट प्रॉपर मील इन एवरी डे. उसको रोज़ प्रॉपर खाना नहीं मिलता था.
She is not able to eat properly, and that is the reason she is very sick, she is very ill. So, that is Pot Belly. Now, Kailash, he is 7 years old. He looks older than his age. वो अपनी एज से क्या लगता है, बड़ा लगता है. His body is fat and flabby. उसकी बॉडी कैसी है, फैटी और फ्लैबी. He has pain in his leg. और उसके पाँव में अक्सर क्या रहता है, दर्द रहता है. He is not very active. He goes to school by bus and spend many hours watching TV. Now what does he eat? वो क्या खाना खाता है? He does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetable and roti. He only eat junk food, chips, burger, pizza and soft drinks from the market. He will look like, because he will very fatty and flabby, because whole day he was eating junk food. वो सारा दिन क्या खाते रहता है, जंक फूड, जिसकी वजह से उसका पेट काफ़ी, स्किन कैसी हो गई, फैटी हो गई है. ठीक है. Now here some question discuss. First है, why do you think Rasmi could eat only one roti in the whole day? आपको क्या लगता है, रश्मि पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी क्यों खाती थी? Because Rasmi is too poor to afford a proper meal. That's why she could eat only one roti in a day. क्योंकि वो इतनी गरीब थी कि उसको प्रॉपर मील नहीं मिल पाता था, इसलिए वो एक दिन में सिर्फ एक. सेकेंड, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद होगा? नो, कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स. ही हार्डली डज एनी फिजिकल एक्टिविटी. वो मुश्किल से कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करता था. नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड मीन्स the proper food is such a food which gives adequate means proper amount, adequate and nutrition food. nutrition जिसमें nutrition की मात्रा हो, like iron, calcium, proteins, carbohydrates. These are nutrition food which are necessary for our body. According to one's body need, make the proper food. These types of food make a proper food, and the nutrition food take in proper amount. It is called proper food. Why do you think that the food of Rasmi and Kailash was not proper? Because Rasmi is not getting adequate amount of food, and Kailash is not taking too much amount of, Kailash is taking too much amount of junk food. That's why both the children food is not proper. Because Rasmi is too poor, she is hardly she is not able to take proper food, and Kailash always eat junk food. That's why both the children's food is not proper. Now here find out one activity is here. You ask to your grandparents or elderly people and do this in your home. Now this is the end of this video. Tomorrow we will meet with next video. Stay home, stay safe. Have a nice day.